Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to cover the last part of the chapter, The Enemy, which is such a lengthy chapter. So we had already learned more than half story in previous parts. So this is the last part where we will be covering the remaining part of the chapter. So let us begin. The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. So till here we had learned that Dr. Sadao had offered the enemy or the young boy that he could take a boat, he could keep some of his clothes and could go away from there, and this is how nobody will be able to see him. तो कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए थोड़ी दया भावना थी. एज अ ह्यूमन बीइंग ही वॉज नॉट एबल टू किल हिम आफ्टर गिविंग हिम अ प्रॉपर क्योर. तो जब उसका इलाज करने के बाद उससे नहीं लगा उसे मार देना चाहिए, और उसने उसको ये तरीका सिखाया. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. So what he did, he made all the arrangements for this boy, that man who was enemy. और उसने क्या किया, सारे अरेंजमेंट करके उसके लिए बोट, वाटर, फूड सब अरेंज करके, और क्विल्ट ताकि उसे ठंड ना लगे वो भी उसके लिए उसने बोट में सब कुछ रख के उसे. द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, फॉर द टाइड वॉज हाई. देर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश नाइट. So this all was done by Dr. Sadao. So how passionate he was about the man and he wanted to save his life. तो उसने क्या किया, उसने बोट को पोस्ट से बांध दिया क्योंकि बहुत हाई टाइड यानी लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी, मून भी नहीं था, और उसने बिना फ्लैश लाइट के ये सब काम किया. वाई नॉट अ फ्लैश लाइट? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेव द मैन एंड हिमसेल्फ एज वेल, सो दैट ही इज़ नॉट एबल टू बी कॉट बाई द पुलिस. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and Suhana knew nothing. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She missed him so. तो जब वो घर में आया तो बिल्कुल ऐसे आया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो. नॉर्मली वो वर्क से वापस आया हो, और इसलिए हाना कुछ नहीं जानती थी. आज यूमी वहीं थी. उसने कहा, उसने ही उसको सपर सर्व किया. वो मॉडर्न इतनी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी उसके बगैर खाना नहीं खाया. किसके बगैर? सदाओ के बगैर. यूमी जो थी वो बच्चे पर चिल्ला रही थी, और वो एक सांस लेकर कहती रही कि वो उसे बहुत मिस करता है. सो इट वॉज जस्ट लाइक अ रूटीन डे as earlier they used to have, and they did not talk about the man. The servants will come back soon as the foreigner is gone, Sadao said. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. तो अब जो कि वो उसके लिए सारे अरेंजमेंट करके आ चुका था, तो उसने वहाँ बता दिया कि कल जो है फॉरेनर यहाँ नहीं होगा, इसलिए वो लोग सर्वेंट्स जो हैं वर्क पे वापस आ सकते हैं. और वो लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए कहाँ गया? गेस्ट रूम में गया, डॉक्टर सदाओ. और उसने उसको बहुत अच्छे से उस अमेरिकन का टेम्परेचर चेक किया, उसकी स्टेट ऑफ वुंड जो उसका घाव था वो किस कंडीशन में था उसको चेक किया, उसकी हार्ट और पल्स चेक की, और उसने देखा कि वो इरेगुलर थी, इसलिए शायद एक्साइटमेंट की वजह से. तो यंग मैन के लिप्स जो थे वो पेल हो चुके थे, उसने उन्हें कस कर भींचा हुआ था, और उसकी आंखें लगता था जल रही हों, और उसके जो नेक पर स्कार्स थे वो रेड थे. सो दिस वॉज मे बी the punishment was given in the cell where he had got these scars on his neck. I realize you are saving my life again, he told Sadao. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here
एनी लॉन्गर। तो उसने कहा कि तुम मेरी लाइफ को जो है वो दोबारा बचा रहे हो। तो सदाव ने कहा नहीं, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम यहाँ हो तो सब कुछ इनकन्वीनियंट हो चुका है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. तो उसने सोचा कि वो ये फ्लैश लाइट इस आदमी को देगा, उस अमेरिकन को, और उसने सोच लिया कि वो तब देगा जब वो यहाँ से जा चुका होगा और अपनी नाव में बैठ चुका होगा, और वो इसको अंतिम समय में देना चाहता था क्योंकि वो उसको स्वयं से यूज़ करता था। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. तो उसने उसे ये तरीका बताया, how he will be able to get to know whether the man reached to his destination or not, whether he had lost all his food and he had eaten that all without reaching to the destination. So he gave him the clue कि वो 2 बार अगर सिग्नल देगा तो मैं समझूंगा वो पहुंचा नहीं है और उससे खाना ख़त्म हो चुका है, और अगर उसने मुझे 1 सिग्नल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो अपनी जगह पहुंच चुका है, अपने डेस्टिनेशन पे, और उसे सिग्नल रात में नहीं दिन में देने थे ताकि कोई और उस पर डाउट ना कर सके। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन। ओके, द यंग मैन ब्रीद। उसने कहा तुम्हें वहाँ फिश भी मिल जाएंगी लेकिन तुम्हें उसे रॉ ही खाना पड़ेगा क्योंकि आग जलाओगे तो वो देखी जा सकेगी, आप अंधेरे में आग को बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो यंग मैन ने ब्रीद किया। सो ही वॉज रेडी टू move and they had made all the plans so well. He was dressed now in a Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. तो उसने उसको जापानीज क्लोथ क्यों पहनाए ताकि वो आसानी से पहचाना जा सके, और उसके हेड पर उसने एक ब्लैक कलर का क्लोथ भी रैप कर दिया, लपेट दिया। Now, Sadao said. The young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. So this is how he went over. उसने उससे हाथ मिलाया, नीचे सीढ़ियों और फर्श की तरफ गया और वो नीचे गार्डन में चला गया। Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash, then he closed the partition. That night he slept. और इस तरह से उसने उसको सिग्नल दिया, वो जाकर शायद बैठ चुका था, उसने उस पार्टीशन को क्लोज किया जहाँ से उसने उस एनिमी को बाहर निकाला था, और उस रात सदाओ चैन से सो सका। Why he slept that night itself? Because still inside his mind that was going on, what if he is caught by the Americans, so he will be killed and there will be no use of doing so much hard work and putting so much efforts in saving his life. So he was a very kind hearted and he wanted to save the man. You say the man escaped? The general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. जनरल का ऑपरेशन हो चुका था, तो जनरल का ऑपरेशन के बाद उससे जब होश आया और जब उसे संभल के याद आई सारी बातें, तो उसने पूछा क्या बोल रहे थे तुम, कि वो भाग गया। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 आवर्स तक तो उसे ऐसा लगा था कि जनरल की लाइफ नहीं बचेगी, मे बी द ऑपरेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल। द gall bladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and demand to food. और उसका गैल ब्लैडर जो था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, और अब जो था आदमी ने, उसने जो जनरल था उसने तेज़ी से गहरी सांसें लेना शुरू कर दी थी और उसे भूख लगी थी, उसे भोजन चाहिए था। सदाओ हैडंट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। सदाओ की हिम्मत नहीं हुई कि उससे पूछ सके उसे मारने कौन आया था, कौन थे जो असैसिन्स थे, जो उसके कातिल थे। So far as he knew they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it.
सर्वेंट्स घर में वापस आ चुके थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेली रूटीन लाइफ शुरू हो चुकी थी और यूमी ने उस कमरे में सल्फर जलाकर उस स्मेल को दूर कर दिया था जो कि स्ट्रेंजर के रहने पर उसमें आने लगी थी. Nobody said anything. Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. तो क्रिसेंथेमम इज अ काइंड ऑफ फ्लावर. तो गार्डनर जो था उसने क्रॉस, दोनों हाथों को क्रॉस कर रखा था क्योंकि वो उनके पीछे फ्लावर्स लेने गया हुआ था. बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन एंड टू अबाउट द प्रिजनर. और जो सदाव था उसने देखा कि जनरल के ऑपरेशन के बाद अब वो फिट था कि उससे बात की जा सके उस प्रिजनर के बारे में. Yes, Excellency, he escaped. Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy. Did I not promise you I would kill him for you? तो उसने कहा वो शायद भाग गया, वो बचकर भाग गया. तो उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी और उसने उसको कहा, वो नहीं चाहता था कि सदाव नहीं चाहता था कि वो जनरल को कुछ भी डिस्टर्ब करे, लेकिन जैसे ही उसने उसका नाम सुना तो उसने कहा, अच्छा वो प्रिजनर, आपको याद नहीं है कि मैंने कहा था कि मैं उसे मरवा दूंगा. You did, Excellency, Sadao said. Sadao was very clever. Now you can see this line. उसने अपने ऊपर कुछ भी नहीं आने दिया. उसने कहा, अच्छा आपने ऐसा करवा दिया. Well, the old man said in a tone of amazement. So I did. But you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. उसने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था, लेकिन आपको मालूम है कि मैं प्रॉब्लम में था और ट्रूथ ये है कि मैं जो है अपनी प्रॉमिस तुमसे करना भूल गया, जो मैंने तुमसे वादा किया था उसके बारे में भूल गया. आई वंडर्ड, योर एक्सीलेंसी, सदाव मर्मर्ड. इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड. तो जनरल ने कहा कि मैं कैसा था, बहुत केयरलेस था और मैं अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभा पाया. But you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty. लेकिन तुम जानते हो उसका बच के भाग जाना ये नहीं दिखाता कि मेरे अंदर पेट्रियोटिज्म की कमी है या मुझ में ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने की एबिलिटी नहीं है. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? तो उससे वो क्वेश्चन करता है डॉक्टर से, अगर तुम समझ सको मेरी जगह पर हो तो क्या तुम नहीं समझ पाओगे. Certainly, Your Excellency, Sadao said. He comprehended that the general was in the palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe. और इस तरह से उसे लगा कि ये बात करने के बाद इस चीज़ को जनरल ने खुद उसे सेव कर दिया और उसे लगा अब वो बहुत सुरक्षित था. I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. मैं जानता हूँ आप कितने लॉयल हो कंट्री के लिए और मैं ये भी जानता हूँ कि कितना जील यानी उत्साह आपके मन में था उस एनिमी को पकड़कर मरवा देने के लिए. यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज. यू विल बी रिवार्डेड, और इसके लिए तुम्हें ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा. बट सदाव, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइट, डिड सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड. देयर वॉज नो prick of light in the dust. No one was on the island. His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. सदाव एक ब्लैक स्पॉट जो है ट्वाइलाइटेड चमकता हुआ देखना चाहता था सी के पास, वही उसका रिवॉर्ड था. और वहाँ पर जब कोई लाइट डस्क में दिखाई नहीं दी उसे, तो वो समझ गया कि आइलैंड पे उसका जो प्रिजनर था वो जा चुका था और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सेफ था, क्योंकि उसने उसको 2 लाइट्स जलाने को बोला था जबकि उसने यहाँ अब तक कोई लाइट नहीं देखी, जिसका सिग्नल था कि उसे एक कोरियन फिश बोट मिल चुकी थी. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white faces he had known. और जब वो अपने दरवाजे पे वरामदा पे खड़ा हुआ उस शाम,
और वो सब याद करने लगा कैसे वो आदमी उसके दरवाजे पर आया था और किस तरह से उसने और भी बहुत सारे ऐसे ही वाइट फेसेस देखे थे जिन्हें वो जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, अब उसे उस प्रोफेसर का चेहरा याद आया जिसके घर पे वो हाना से मिला था। आ डल मैन एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू काइंड her. He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly लैंडलेडी। तो उससे ये सब चीज़ें पिछले टाइम की याद आने लग गई जब वो अमेरिका में हुआ करता था, अपने प्रोफेसर और उनके उचित व्यवहार। ही had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. उसके लिए बहुत मुश्किल था अमेरिका में एक प्लेस पाना क्योंकि वो जापानीज था। The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it. तो prejudice का मतलब होता है giving so much respect to their religion and finding someone, neglecting someone because of their religions or their places from they have come. तो उसने देखा था कि अमेरिकन्स में बहुत पैट्रियोटिज्म था, बहुत प्रेजुडाइज था और ऐसे लोगों के बीच में रहना आसान नहीं था। Knowing himself their superior, how he had deposited the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. और उसे याद था कि जब उन्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बंद किया तो उस एक गंदी सी बूढ़ी औरत ने, जिसका घर बहुत ही बेकार था, उस पर दया खाकर उसे अपने घर में, उस मिजरेबल घर में रख लिया जो कि रहने के लायक भी नहीं था। He had once tried to be grateful to her because she had in her last year nursed him through. और उसने उसके साथ ग्रेटफुल होने की कोशिश की, दया दिखाने की कोशिश की क्योंकि वो लंबे समय से उसके साथ रह रहा था। इन्फ्लुएंजा, उसको इन्फ्लुएंजा हुआ था और वो उसकी हेल्प करना चाहता था। But it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. और उसे याद था उसका चेहरा कितना रिपल्सिव था, और ऐसा ही रिपल्सिव चेहरा और वाइट किसका था? उस प्रिजनर का था जो उसके घर पर आया था। Strange, he thought. I wonder why I could not kill him. और उसने कहा कि कितना स्ट्रेंज है, मैं उसे क्यों मार नहीं पाया, शायद ये मेरे अंदर का इंसान था जिसने उसे मारने नहीं दिया। So students, chapter gets over here. We'll soon meet in next chapter. Till then, take care and do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated.